हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान। आज जो हम करेंगे यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसको आपको करना है, सोचना है, विचारना है और एनालाइज करना है। ये 20 एमसीक्यू जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखेंगे और इसमें जो है हर एक बात को एनालाइज किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या एमसीक्यू आया है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस हियर। You know that today Tripan Study Center discuss a most important 20 MCQ here for the exam point of view, and there is important for the exam. And let's see question here. You know that question on your screen. Question here: what is the position of the President of India? You know that question is clear here. What is the position of the President in India? इट मीन भारत में राष्ट्रपति का पद क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि भारत में राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उस राष्ट्रपति का पद जो है किस रूप में देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यू नो दैट ऑप्शन हियर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, बी रियल हेड ऑफ द स्टेट, सी hereditary head of the state, and did none of these. You know that question is very interesting. But first of all, you understand the most important here. The President of India is like the Queen of Britain, whose function are a large extent ceremonial. The President supervises the overall or functioning of all the political institution in the country so that they operate in a harmony to achieve the objective of the state. You know that most important. It means to hear option A is correct. The nominal head of the state. There is a nominal head of the state. Reasoning here, President of India is like the Queen of Britain, was a function are to be a large extent ceremonial. There is a president survive supervises to be overall function of the political institution in the country so that they are operate a harmony to be achieved to objective to the state. That's important here. And let's see next question here. The next question on your screen, question here: which state has the highest literacy rate in India? You know that question is very interesting. Which state has the highest literacy rate in India? Mean भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और क्लियर है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। यू नो दैट ऑप्शन है Tamil Nadu, B. Kerala, C. Delhi, and D. Pondicherry. You know that question is very interesting. But you know that Tamil Nadu is not a literacy rate is the highest, and Delhi also, and Pondicherry also. It means the only Kerala. Kerala is the highest literacy rate in India. The option B is correct here. The Kerala. B option is correct. Kerala is the highest literacy rate in India. And let's see next question. The next question on your screen, question here: which country experienced a revolution of period to 1857? Which country experienced a revolution period to be 1857? It means to hear 1857 से पहले किस देश में क्रांति हुई थी। क्वेश्चन यहाँ पर समझना जरूरी है कि 1857 से पहले किस देश में
क्रांति हुई थी, जिसको देख के भारत में भी 1857 क्रांति हुई थी। आपको ये बताना है कि 1857 से पहले, यानी 1857 भारत में क्रांति तो हुई थी, लेकिन उससे पहले किस देश में क्रांति हुई थी? तो ऑप्शन है इंडिया, बी फ्रांस, सी बोथ एक्सपीरियंस और रेवोल्यूशन, एंड डी neither experience or revolution. You know that question is very interesting and important for the exam point of view. Which country experienced a revolution period to 1857? The one important point here, the France experienced a revolution period to the 1857. The condition of France lead to a revolution that about intervisible to the change to the country. It means to the answer here B France. The France is there a country. There a revolution period to be 1857. That's an important answer. Option B is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The wind blow in the northern plain in a summer is known as. Question understand? The wind blowing in the northern plains in a summer is known as. क्वेश्चन यहाँ पर साफ है, समझना जरूरी है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भाग में चलने वाली हवा क्या कहलाती है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उत्तरी मैदान में एक तेज हवाएं चलती है और उस तेज हवा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए होगे, तेज गर्मी पड़ती है तो उत्तरी भारत क्षेत्र में जो है बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती है, उस हवाओं को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर देखा जाए तो गर्मी जब पड़ती है तो बहुत ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग उसको क्या नाम देते हैं? देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए काल बैसाखी, बी लू, सी ट्रेड विंड्स, डी नॉन ऑफ दिस। यू नो दैट क्वेश्चन इज क्लियर। द wind blow in the northern plain in a summer is known as a. The answer is a loo. You know that answer is a loo because loo are the stronger against hot dry wind blowing during to the thus over the northern and north west India. It means the option B is correct. Loo. Loo is very dangerous for the. There is a summer time. There is northern plan, and let's see next question here. The next question on your screen. Question here. What is an indicator of the depressed economy? You know that. Question understand? Question is clear. What is an indicator of the depressed economy? It mean to hear मंदीग्रस्त। मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक क्या होता है? देखिए, मंदीग्रस्त का मतलब होता है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स होती है वो बहुत डाउन हो जाता है, उसे हम मंदीग्रस्त कहते हैं। जब मंदी पड़ती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? मान लीजिए किसी देश में मंदी पड़ती है तो मंदी अर्थव्यवस्था के क्या सूचक होते हैं? क्यों मंदी पड़ती है? किसी भी देश के लिए मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक क्या होती है? तो ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नोन ऑफ दिस। You know that question is very important for the exam point of view because what is the indicator of the depressed economies? There is an answer here unemployment. Unemployment. So first of all thought why there is unemployment, poverty, why not? The unemployment, that's the most important answer because increase unemployment in the indicator of depressed economies. If
People cannot be used as a resources. They naturally appear as a liability to be economics. Understand? The people cannot be used as a resource. They naturally appears as a liability to be economics. It means the option A is correct. Unemployment. Unemployment, the indicator of depress of economics. Option A is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which plan in the world to increase the enrollment in the higher education of the 18-23 years age group to be 15%? You know that question. Understand? Question here. Which plan in the hour to be increase the enrollment in the higher education of the 18 to 23 years age group to be 15%? It mean to here किस योजना ने 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन को 15% तक बढ़ाने का प्रयास किया है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ और क्लियर है कि किस योजना ने 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन भरने को 15% तक बढ़ाने का प्रयास किया है? वो कौन सी योजना है ये आपको बताना है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की जो है नामांकन करने के परसेंटेज को बढ़ा दिया है. यू नो दैट द ऑप्शन हियर 11th, B 9th, C 12th, D is 10th. You know that question is important for the exam point of view. And see the answer. The answer is a clear cut here. There is a 11th. The 11th is a correct answer. Why? Reason being here, the 11th plan in the word is to increase the enrollment in the higher education, the 18 to 23 years age group to percentage by 2011 to 2012 and to be 20% by the 12th plan. It meant to the answer 11th. 11th is correct because 11th is increasing of 50% and 2011 and 2012 and there is a percent increasing 21% by the 12th plan. That's an important question here. And let's see next question. The next question on your screen, question here. In this book, the Monetary Quiz propose a division of power within the government between the legislatures, the executive and judiciary. Identify the book. Question understand? Question is clear here. In this book, matricule purpose a division of power within the government between the legislatures, executive and judiciary. Identify the book. मीन इन पुस्तक में मैट्रिक्यूल ने सरकार के भीतर विधायिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा. उस पुस्तक को आपको पहचानना है. आपको तो पता ही होगा कि भारत के संविधान जो है 3 टायर्स पे चलाई जाती है. विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये 3 टायर्स हैं. लेकिन इसके विषय में किस पुस्तक में जो है लिखी गई है बात, तो उस पुस्तक को आपको नाम बताना है जिसमें जो है सरकार के भीतर विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीचों में जो है शक्ति का विभाजन किया है. वो कौन सा पुस्तक है? द ऑप्शन हियर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी द स्पिरिट ऑफ द लॉस, सी 2 ट्रेस्टिस ऑफ गवर्नमेंट, डी दास कैपिटल. You know that question is very interesting and important for the exam point of view. The answer here, the spirit of the laws. The spirit of the law. Why?
because is the most important point here. The most important point here in this terrestrial muscles is plated by the constitutional system of government with the separation of power, the preservation of legality and civil liberties, and the end of slavery. That's important here. The B, the spirit of the law. That's the book here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Choose the correct option from the columns A and B. Choose the correct option from columns A and B. The column A and the B is important. The column A, designated to unemployment area, surplus labor sector, and C, market activities. D, the Sarv Shiksha Abhiyan, secondary education. And B options here found in a industrial. Second, it has a move to the primary, and 3 are non-profitable, and 4 are universalization of. You know that questions is very important for the exam point of view. It mean to here देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ साफ है कि कॉलम ए और बी में सही विकल्प को आपको चुनना है और उसके आंसर सही आंसर देना है। देखा जाए तो कॉलम ए कहता है प्रचंड बेरोजगारी और उसके साथ औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो क्या ये ऑप्शन सही बनेगा? दूसरा बोलता है कि अधिशेष श्रम यानी प्राथमिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, या सी बाजार गतिविधियां जो गैर लाभकारी है, या डी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है? The question is very interesting. You know that the answer here D is correct. Answer is D is correct. Reason being here, Sarv Shiksha Abhiyan, the dependent of the universalization of secondary education. The universalization of secondary education because Sarv Shiksha Abhiyan as a SSA is the world of most successful school program me in the India. It was launched to be achieve the goal of universalism of elementary education in the country. It's a focus on compulsory education to children in age group of 14 years. It means to the answer is the D is here correct here. Sarv Shiksha Abhiyan, there is a universalization of secondary education. The D option is column is correct here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Assertion and reasoning here. The first assertion is A here. A broken chain stand for the act of become a free. And reason here. Chain were used to be fetter slave. Mean here. यहाँ पर आपको जो है अभिकथन और जो है आपको दाव में जो है यहाँ पर समझाना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको इसमें से सही विकल्प को चुनना है और सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है कि इनमें से कौन से विकल्प जो है सही है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये अभिकथन ये कहता है कि एक टूटी हुई श्रृंखला मुक्त होने के कार्य का प्रतीक है। देखिए, एक टूटी हुई श्रृंखला जो होती है मुक्त होने के कार्य का एक प्रतीक माना जाता है और कारण इसकी ये बताई जा रही है कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का उपयोग किया जाता था। तो ये बात तो सही है कि दासों को बांधने के लिए जो है जंजीरों का उपयोग किया जाता था, जंजीर को तो प्रयोग होता था। लेकिन क्या ये अभिकथन सही है कि एक टूटी हुई श्रृंखला मुक्त होने के कार्य का प्रतीक है? देखिए, टूटी हुई श्रृंखला का मतलब ये है कि कार्य का प्रतीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी बात सही है। एंड सी द ऑप्शन हियर, बोथ assertions A and the reasons are true.
and the reason R is there is a correct explanation of the acceleration A. B here, both acceleration A and R is a true, but reason R is a not the correct explanation of the acceleration A. And C, acceleration A is a true, but reason is a false. And D, acceleration A is a false, but reason is a true. The question is very interesting and important for the exam point of view. You know that, first of all, you understand our one point here, and point here that's important because point understanding for this question. The point here, in 18th century, the majority of man and woman could not be real or right. Understand? In the 18th century, the majority to the man and the woman could not be read and write, so they use a symbol where a broken chain. Significance that a chain were used to be fatter slabs and stand for the act becoming free. It means to the option A is correct. Reason here, a broken chain stand for the act of becoming a free. And the reason chain were used to be fatter slab. That's important. Option A is correct here. It means to A and the R is correct. There is a accelerations and reasons are true. And the reason R is the correct explanation of A. The option A is correct. You know that next question on your screen, question here, identify the Russian leader. On your screen, there is a Russian pictures here, the leader. The Russian leader on a picture on your screen. Identify the Russian leader. What is the name of the Russian leader here? The question is very interesting. Identify the Russian leader. Mean, आपके समक्ष जो है एक तस्वीर प्रस्तुत है. इस तस्वीर को पहचान करके बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये रशियन लीडर कौन है. आप इस रशियन लीडर के बारे में क्या जानते हो और कौन है ये. एग्जाम में क्वेश्चन कई भी घुमा के आ सकती हैं कि जो पिक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है ये रशियन लीडर हैं और इनका नाम क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है. द ऑप्शन है यहाँ ए लेनिन, ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी जॉन निकोलस सेकेंड and Alexander Kerenx. You know that question is very interesting. But answer here, answer is clear. Option C is correct. Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas, there is an answer. The Tsar Nicholas II was the last emperor of Russia, king of Poland, and Grand Dukes of the Finland. We are advocated to the 1917. That's important here. That's important here. The Tsar Nicholas II was the last emperor of Russia, king of Poland, and Grand Dukes of the Finland, and he was the abdicated in 1917. That's the option C is correct here. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. What is the mean by the social exclusions here? What is the mean by the social exclusions here? You know that the question here, सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हो? सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? बहिष्कार का मतलब समझते हो क्या होता है? कि मान लीजिए कुछ गलत आप करते हो और इसके लिए समाज आपको जो है अपने समाज से निकाल के बाहर फेंक देता है और आप कहीं और रहने लग जाते हो, समाज में आपको आने की इजाज़त नहीं होती है. तो ये मतलब हुआ कि सामाजिक बहिष्कार से क्या मतलब होता है. द ऑप्शन हियर, process by which all the individual and executive for the contain privileges. The option B, processes by which all the individual are given to the privileges. And C, process in which individual or group are excluded
from the facilities and opportunity that enjoyed by the general people. And D, none of these. You know that question is very interesting. But first of all, you understand a social exclusions here. Social exclusions mean a situation in which the individual are unable to participate in the political, economics, and social seminars, and they do not enjoy any benefit and opportunity. This means to the social exclusions here. They do not enjoy any benefit and opportunity. It means to the option here C is correct. The process in which the individual or group are excluded for the facilities and opportunity that are enjoyed by the general people. Option C is correct. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. The senior most judge of Supreme Court is appointed by the senior most judges of the Supreme Court is appointed by the. Understand question? The question is clear here. सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम होते हैं, ठीक है, जो वरिष्ठतम होते हैं यानी सीनियर जो जज होते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन अगर आपने समझा होगा तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है. द ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस एंड डी प्राइम मिनिस्टर. You know that question is very interesting. But first of all, one fact is important. The fact is important. The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President of the advice of Prime Minister and consistent with the Chief Justice of India. There is important here. Important here. The judge of the Supreme Court and the High Court are appointed by their President on the advice of Prime Minister and consultations with their Chief Justice of India. It means to the option C is correct. Chief Justice. The Chief Justice appointed by the senior most judges of Supreme Court. Option C is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. In which of the following state is a Mueller Lake localite? In which of the following state is a Mueller Lake localite? Mean here, निम्नलिखित में से किस राज्य में मूलर झील स्थित है? आपके समक्ष ऑप्शन है, उनमें से किस राज्य में जो मूलर झील है, लेक है, वो स्थित है? द ऑप्शन है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी जम्मू एंड कश्मीर. यू नो दैट क्वेश्चंस इज वेरी क्लियर एंड इम्पोर्टेंट for the exam point of view. But first of all, most important thing here, the Mueller's Lake is a Jammu and Kashmir is the largest freshwater lake in India. It means to D option is correct. Jammu and Kashmir. The important is a Mueller Lake. There is a most important lake for the Jammu and Kashmir because the largest freshwater lake in India. Mueller Lake, the largest freshwater lake in India. They are located in Jammu and Kashmir. Option D is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here.
A statement and assertions is a flowing by the statement of the reason are mark the correct option. You know that the solution is a draft create a storage of food in the affected area. A solution here, draft create a storage of food in the affected area. The reasons here, due to a natural climate that total production of food grain decrease. You know that question is clear here and understandable here because the drought create a shortage of food in the affected area. Our reasons here, due to natural climate total production of food grain decreasing. It mean to here सूखे से प्रभावित क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती है। ये हमारा अभी कथन है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर यह दावा की जाती है, यानी ये कारण बताई जाती है कि प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्य उत्पादन कुल उत्पादन घट जाती है। देखिए बात तो यहाँ पर दोनों ही सही कह रहे हैं, क्योंकि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी तो होगी क्योंकि कारण तो यही बनता है ना कि प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न की कुल उत्पादन घट जाती है। तो यहाँ देखा जाए दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ऑप्शन पे, ए बोथ असोसिएशन एंड रीजंस आर देयर ट्रू एंड द आर इज करेक्ट explanation of the solution A, and B here both association and reasons are true, but reason R is not the correct explanation of the solution A. And C here association A is a true, but reason is R is a false, and D association is a false, but reason is a true. It means to the here a drought create a shortage of food in the affected area. That's the correct. And reasons here due to the natural calamity is total production of food grain decreasing. It means option A is correct. Both acceleration and reason are true, and there is a R is the correct explanation of A. It means option A is correct. Option A is correct. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. A farmer has a grow of wheat during a different year. Farmer has a grow wheat during a different year. Each year is a consumptions of the farmer remain the same. The whole of surplus wheat after the consumptions is used as a capital for next year's production. Each year the production is twice the capital used in the production. Complete the table on the basis of the given information. It means the question is very interesting. Question is very interesting. Mean here, एक किसान ने विभिन्न वर्षों में गेहूं उगाया है। एक किसान ने विभिन्न वर्षों में गेहूं को उगाया है। प्रत्येक वर्ष किसान की खपत सामान्य रहती है। खपत के बचे हुए गेहूं का पूरा उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन की पूंजी के रूप में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष उत्पादन में उपयोग पूंजी से दुगनी हो जाती है और दी गई जानकारी के आधार पर तालिका को आपको पूरा करना है। यहाँ पर तालिका आप देख सकते हो, या दूसरी तालिका में जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको जो है यहाँ पर करेक्ट करना है कि आखिर यहाँ पर क्या मिसिंग हो सकती है। सोचने वाला है। देखा जाए तो यहाँ फॉर्मूला है कि वर्ष उत्पादन उपयोग अधिशेष इज इक्वल टू उत्पादन माइनस अगले वर्ष के लिए उपयोग पूंजी। Note that is the most important question here. A farmer has a grow wheat during different year. Each year is a consumption of the farmer remain the same. Remain the same. Main point here. Remain the same. The whole of surplus wheat after consumption is used to be captured for the next year's production. Each year, the production is twice the capital used in a production. Complete the table on the basis of the given information. The year production consumptions is equal surplus is equal to production minus consumptions capital for the next year.
The years here, first year 140, 60, 60. Second year here, ask the questions and 40, 80, 80. And third year 160, 40, 20, and the B here. Choose the correct option. It means here there is surplus is equal to production minus consumption of capital year next year. You calculate here. Calculating is very clear. Calculating is very clear. It means to the plus of 2, 4 and 60. 40 and 60 is the 100. It means to here. It means to the 40, 80, 120. Option 2 is 120 is the first option. A and B. But C and D is not the correct answer. C, D is eliminated here. Only option A and B. And the next here, second here. The B, first and second here, they are same here. B option is the same 60, 60, 80, 80. It means to the 120, 20. The 120 is a B of here. There is it means to A option is correct. Option A is correct. 120, 120. A is 120 and B is 120. The option A is correct here. And let's see next question. The next question on your screen. The question here. What is the wealth of the Bhavar? What is the wealth of the Bhavar? It means to here भावर की चौड़ाई कितनी है. आपको अगर पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे कि भावर नदी जो है उसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी में मापी गई है. तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है और जिन बच्चों को पता होगा वही इसका साफ आंसर दे सकते हैं. द ऑप्शन ए 8 to 90 किलोमीटर, 19 किलोमीटर. बी इज 8 to 16 किलोमीटर. C 16 to 30 kilometer. D 8 to 26 kilometer. You know that question is very clear and important here because what is the width of the Bhavar? So one important fact here, a narrow belt lining a parallel to be a Shivalik is known as the Bhavar. A narrow belt lining of parallels to be a Shivalik is known as a Bhavar. The belt is about 8 to 16 kilometer. 8 to 16 kilometer. It means to the option B is correct. 8 to 16 kilometer. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. Name the only active volcano in India. Question understand? Question is very clear. The name the only active volcano in India mean भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के नाम बताइए. देखिए आपको नाम बताना है उस ज्वालामुखी का जो भारत में सिर्फ एकमात्र है जो सक्रिय है यानी एक्टिव है. तो वो कौन सा ज्वालामुखी है, आपको ज्वालामुखी का नाम बताना है. द ऑप्शन ए मजूली आइसलैंड, ऑप्शन बी वेरन आइसलैंड, सी बेनाडू आइसलैंड, डी हियर कच्छ आइसलैंड. नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द आंसर हियर Barren Island. Barren Island is the most important active volcano. There is a locality in Andaman and Nicobar Island. There is only one active volcano in India. That is the option B is correct.
Where an island. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. The river Narmada has it is a source 8. The river Narmada has it a source 8. It mean नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। देखिए नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के जो है उद्गम का मतलब होता है कहाँ से ये शुरू होती है। नर्मदा नदी जो है कहाँ से शुरू होती है। तो क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है। द रिवर नर्मदा हैज इट इज अ सोर्स एट ए सतपुरा, बी ब्रह्मगिरी, सी अमरकंटक and the slope of the western charts. You know that question is very interesting. But first of all, you understand one fact here. The fact here, the source of Narmada is a small reservoir known as the Narmada Kund. The source of Narmada is a small reservoir known as the Narmada Kund. It is localized in the Amarkantak on the Amarkantak plateau in the Anpuras district on the Sahdol zone of the eastern Madhya Pradesh. It means to the answer here C is correct. Amarkantak. Amarkantak, the river Narmada has its source at here. Amarkantak. Option C is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Who lead to Naya Yudh? The question is very interesting and very important. Who lead to Naya Yudh? मीन नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन साफ है यहाँ। नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। ऑप्शन देखें यहाँ पर। ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी चौधरी DCV लाई, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद and D Motilal Nehru. You know that question is very interesting. Who lead to the Naya Yudh? The answer here Chaudhry D.V. Lai. Chaudhry D.V. Lai is the most important leader Naya Yudh. Reasons being here, the Chaudhry Dev's allies then to opposition leader to lead to the movement is called Naya Yudh. So for the justice and forming a new party, Lok Dal. There is option C is correct here. Chaudhry Devi Lai. Here a misprint here. The Devi is a C is here adding. The option is correct. Chaudhry Devi Lai is the B option is correct. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. In a democratic government, the decision-making power is divided in the. You know that question is very clear. In a democratic government, the decision-making power is divided in the. Question is clear. It means to here, एक लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय लेने की शक्ति विभाजित होती है। देखिए एक लोकतंत्र, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ पर जो है निर्णय लेने की शक्ति किस में विभाजित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको पता होना चाहिए कि भारत की गवर्नमेंट जो है 3 टायर है, जिसमें न्यायपालिका जो है न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका सम्मिलित होती है। तो ये 3 टायर है, तो निर्णय लेने की संभावना सभी में होगी। तो ऑप्शन ए divided in there is a legislative structures, B is executives, C is a judiciary, and these all of this question is very interesting. In a democratic government, the decision making power is divided in the. You know that decision making legislative structure is taking here, and executive also, and judicial here. It means the option D is correct.
Option D is correct. Reason being here, the reasons are most important for the exam point of view. In the democratic government, the decision-making power is divided into three separate organs here. The first legislatures, executives and judiciary. It means to the all of this is correct answer. जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पद का क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत क्लियर है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किसके बराबर होता है और क्या होता है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या पद होता है भारत के राजनीतिक में। अगर ऑप्शनों पर हम नज़र डालें तो ऑप्शन ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो स्टेटर का नामांतरण प्रमुख होते हैं, या बी राज्य का वास्तविक प्रमुख होते हैं, या सी राज्य का वंशगत प्रमुख होते हैं, या इनमें से कोई बात सही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी की तरह है। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति हैं ब्रिटेन के जो है महारानी की तरह ही इनका पद ग्रहण होती है। ये कार्य काफ़ी हद तक जो है औपचारिक होते हैं, इनके जो कार्य होते हैं औपचारिक मात्र होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते, औपचारिक होते हैं। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के समग्र कामकाज की निगरानी करते हैं ताकि वह राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सद्भाव में काम करे। तो देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम मात्र का ही होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन के महारानी की तरह ही इनके कार्य प्रणाली होते हैं और ये कार्य प्रणाली जो होते हैं औपचारिक तौर पे होती है। तो देखा जाए तो यहाँ अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जाएगा, स्टेटर का नामांतर प्रमुख है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्टेटर का नाम मात्र प्रमुख होता है भारत में राष्ट्रपति का पद। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही साधारण है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। नो दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। ऑप्शन पे अगर हम नज़र करें तो तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी। देखा जाए दोस्तों तो कहते हैं भारत में साक्षरता दर अभी भी जहाँ का तहाँ ही है। चाहे जितने मर्जी मंत्री लोग अपने आप को शाबाशी दे लें और जितना मर्जी अपने आप को अच्छे कह लें, लेकिन भारत की साक्षरता दर जो है यहाँ पर जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव हमें देखने को भी नहीं मिला है। और ये सच्चाई है, ये भली भांति सच्चाई है। आज सरकार सिर्फ बच्चों को पास कर रही है, बच्चों के अंदर वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि भारत को जो है साक्षरता दर बढ़ गई है लेकिन बच्चे समझदार नहीं बने हैं। आज भी हम बेरोजगारी की समस्याओं से ही गुजर रहे हैं, अनपढ़ता से ही गुजर रहे हैं। क्योंकि कहा जाए तो अनपढ़ता नहीं तो क्या है कि भारत की ऐसी दशा होती चली जा रही है। हम कह रहे हैं कि हम विकसित होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत कभी विकसित होगा ही नहीं जब तक इनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को और आप भी इस बात को मानते हो, जितने भी पेरेंट्स हैं ये भी बात मानते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, जो होना चाहिए वो उस बेस पे नहीं चल पा रहे हैं। पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं बच्चों के लिए कि सरकार दिन प्रतिदिन जो है नए नए सिस्टम बनाती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम गिरता चला जा रहा है सिर्फ अपनी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और कहने के लिए कि भारत साक्षर है। लेकिन किस बात का साक्षर? साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, वो साक्षर कहलाते हैं। लेकिन आज तो देखिए 10वीं वाले बच्चे भी ना किसी चीज़ को समझ सकते हैं, ना विचार कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं। तो ये साक्षरता दर किस बात के लिए कहा जा सकता है?
लेकिन चलिए, ये तो भारत की अपनी समस्या है, इसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते। कहते हैं हम लोग तो आम हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें खास। हमारा क्वेश्चन तो यही है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बी आपका सही जाएगा। ठीक है, केरल, तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ साक्षरता दर उतनी अधिक नहीं है। तमिलनाडु में भी नहीं है, पुडुचेरी में भी नहीं है। केरल जो है साक्षर दर में नंबर 1 आता है। यहाँ पर सभी लोग जो है एजुकेटेड होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर केरल जो है स्थान है, जहाँ पर साक्षरता दर जो है काफ़ी अधिक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 1857 से पहले किस देश में क्रांति हुई थी। क्वेश्चन साफ है कि 1857 से पहले किस देश में क्रांति हुई थी। देखिए, 1857 में क्रांति हुआ था भारत में, लेकिन उससे पहले ये क्रांति किस देश में हुई थी, जिसको देख के 1857 में भारत में भी क्रांति हुई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। विच कंट्री experience a revolution period of 1857. You know that question is very interesting. Which country has experienced a revolution period to be 1857? ऑप्शन पे अगर नजर डाले तो ए कहता है भारत, बी कहता है फ्रांस, सी कहता है दोनों में से एक क्रांति का अनुभव किया था, दोनों में से एक क्रांति का अनुभव तो किया था, डी कहता है किसी ने भी क्रांति का अनुभव नहीं किया था। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और समझने वाली बात है कि सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ पर हुई थी, उससे पहले कहाँ पर क्रांति का जो है हमें दीदार करना पड़ा था। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि 1857 से पहले फ्रांस ने एक क्रांति का अनुभव किया था। 1857 से पहले फ्रांस में एक जो है क्रांति हुई थी। फ्रांस की स्थिति के कारण एक क्रांति हुई जिसमें देश में परिवर्तन लाया गया। परिवर्तन में परिवर्तन को देखने को मिला, तो वो फ्रांस थी। फ्रांस में जो है 1857 से पहले क्रांति हुई थी और इसको देख देख के भारत ने भी क्रांति की थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, 1857 से पहले किस देश में क्रांति हुई थी, तो वो हुई थी फ्रांस में। 1857 में तो भारत में हुई थी, तो ये बी ऑप्शन जाएगा। उससे पहले के पूछ रखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान भाग में चलने वाली हवा क्या कहलाती। देखिए, ग्रीष्म ऋतु आती है, बहुत गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में जो हवाएं उत्तरी मैदान में चलती है, उस हवा को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है। तो क्वेश्चन है यार, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लान in a summer is known as, the wind blowing in the northern plan is the summer is known as, क्या उसको एक काला बैसाखी के नाम से हम जानते हैं, या उसे लू कहते हैं, या सी व्यापारिक हवाएं कहते हैं, या डी में से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में हवा चलती है, उस हवा को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते क्या हैं। तो इसको आपको समझने के लिए थोड़ी एक बात समझना पड़ेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में दशा के दौरान सबसे चलने वाली तेज़ गर्म शुष्क हवाएं होती है, जिसको हम लू का नाम देते हैं। कहते हैं ना उत्तरी भारत में लोग की लू लग गई है, बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती है, लोगों को जाना दुश्वार हो जाता है। और ग्रीष्म काल की जो है अवकाश भी स्कूलों में छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि गर्म हवाएं जो है चलती है, और कितने लोग जो होते हैं इसी हवा के चपेट में आ जाते हैं, जिनके शरीर से जो है सारे पानी चूस लेते हैं, यानी डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़े जो है गर्म लू के कारण होता है। और ये शीत ऋतु में जो है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान भाग में ये बहुत ही चलने वाली हवाएँ होती है, जो जनरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस महत्वपूर्णता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, क्वेश्चन वही बात आती है कि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक क्या है। देखिए, मंदीग्रस्त जो अर्थव्यवस्था बनती है, तो उसमें कौन सी बात जो है मेन रखी जाती है, आखिर मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था के कौन सूचक होता है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है कि what is the indicator of the depressed economics. You know that question here, what is an indicator of depressed economics.
ऑप्शन पे अगर आप नज़र डालोगे तो बेरोजगारी, बी गरीबी, सी दोनों, ए और बी दोनों बात सही है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो आपको एक फैक्ट बस दिमाग में रखना चाहिए, द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज द इंडिकेटर ऑफ डिप्रेशन इकोनॉमीज, इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्सेज दे नेचुरली अपेयर टू द एबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक जो होता है उस देश की बेरोजगारी है। और आपको शायद पता भी होगी कि भारत से बेरोजगारी कभी नहीं जाएगी, चाहे जो सरकार जितना भी पीठ थपथपा ले, भारत से बेरोजगारी नहीं जाएगी। और इसका कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम है। मान लीजिए सभी बच्चे पास हो जाते हैं तो सब तो बेरोजगारी हो जाएंगी, लेकिन अगर शक्ति होती, इम्पोर्टेंस होती, तो बच्चे भी मेहनत करते हैं और मेहनत के जो है फल के बारे में समझते हैं, और वो कोई ना कोई काम धंधा अपना जीवन के चलाने के लिए जरूर अपनाते, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, समझ दिया है। लेकिन आजकल क्या होता है, आज कहीं भी चले जाइए, घूसखोरी, पैसाखोरी। आज तो ये माता पिता का विचारधारा हो गया है कि बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है कि हम उसके लिए पैसे इकट्ठे कर लें, हम तो ऐसे भी सर्टिफिकेट खरीद लेंगे। और ये होता है, आज कहीं भी किसी भी बोर्ड में चले जाइए, वहाँ गोरख धंधा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम मजबूत कहाँ हुआ, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। आज देखा जाए तो पढ़ा लिखा लोग जो हैं रोडों पर रेडियां लगा रहे हैं, और जो अनपढ़ लोग सब हैं वो बड़े बड़े अफसर बन के बैठे पड़े हैं, सारे के सारे पैसे की बदौलत। कभी आपने सुना है या कभी देखा है कि अमीर बाप का बच्चा होगा वो कहीं रेडी लगा रहा हो? कहीं देखा ही नहीं होगा। ये बहुत विचित्र बात है, क्योंकि आखिर उनके बच्चे में होता ऐसा क्या स्पेशल है कि वो हमेशा बड़े ही लोग बन जाते हैं? क्या स्पेशल होता है? मैंने तो आज तक देखा नहीं, कुछ स्पेशल तो मुझे नज़र कभी आया ही नहीं। वो तो हमसे भी अनपढ़ होती हैं, क्योंकि कारण ये है ना कि पैसा है। आजकल देखिए मैक्सिमम बंदे जॉब पर वही लगे रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे, जिनके माता पिता भाई बहन कोई ना कोई जॉब पे रहता है। वो उनके बारे में पता होता है, जॉब के बारे में, वो कैसे न कैसे अपने डाल ही लेते हैं। और रिश्वतखोरी तो आज भारत से कभी जाएगी नहीं, ये मैं क्लियर बोल सकता हूँ। हर क्षेत्र में आप रिसर्च करके देख लीजिए, हर जगह आपको रिश्वतखोरी की सबसे बड़ी जो है विडंबना मिलेगी। कहते हैं ना सरकार सब कि वीडियो बनाइए, अरे खाक का वीडियो बनाया जाए, पहले तो अपने क्षेत्र को संभालिए। कभी बाहर निकल के देखिए कितनी चल रही है गोरख धंधा। कहते हैं आपने पानी फ्री किया, लेकिन पानी के नाम पर लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप तो सिर्फ रूल रेगुलेशन बना देते हो फटक से, हम ये करेंगे। आप बेवकूफ़ तो लोग होते हैं जो इनके बकवास बातों पे आ जाते हैं कि भाई नहीं सरकार तो पानी दे रही है फ्री, ये दे रही है। अरे कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तभी तो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है कि इनकी गोरख धंधा खत्म ही नहीं हो रहा है लोग बरगलाने की, और लोग जो है समझदारी लगा नहीं रहे हैं। रीजन्स क्या है? पढ़े लिखे ने ढंग के नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो इतने सारे किताबों में यही बात लिखी गई है। देखा जाए तो अगस्त कामटे हो, इतने बड़े सोशोलॉजिस्ट हो, ये सारे के सारे इसी राजनीति से दुखी थे, क्योंकि वो राजनीति को बदलना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। क्योंकि कहते हैं ना, एक आदमी क्या कर सकता है। कहते हैं अगर गांधी जी भी अकेले निकलते तो शायद वो भी वो कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि गांधी जी का विचारधारा सही था, उचित था, इसलिए सभी लोग उनके साथ थे। लेकिन आज सिर्फ दिखावा करने के लिए जो है लोगों को इकट्ठा की जाती है, उनको लालच दी जाती है कि आपको 500-500 रुपया देंगे, चलिए रैली में चलिए, मारपीट कीजिए। तो ये सब बातें गलत है, तभी तो बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक जो होती है वो बेरोजगारी होती है। आपको समझ में आ गया? मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक जो होता है बेरोजगारी, ये ऑप्शन है यहाँ पर। दोस्तों बात यहाँ पर सही होती है, तभी मैं जाके जो है कुछ आपके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आंख बंद के कभी भी इलेक्शन हो या किसी चीज़ को, किसी लोग को न चुनिए, इससे देश की भविष्य खराब हो रहा है। आज देखिए हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं और यहाँ 25-24 तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए हमारा देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे अर्थव्यवस्था है, कैसा हमारा समाज है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन को 15% तक बढ़ाने का प्रयास किया है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है।
आपको उस योजना के नाम बताना है जो 18 से 23 वर्ष के आयु के वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन को 15% तक जो है बढ़ाने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन है यार, विच प्लान इन ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ environment is a high education of 18 to 23 years age group to a 50%. You know that questions here, which plan is in order to increase the environment in a high education of 18 to 23 years age group to the 15%. तो क्वेश्चन देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन भी देखिए, 11वां था वो योजना, या 9वां था, या सी कहता है 12वां था, या डी कहता है 10वां था। जिसने 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग की उच्च शिक्षा में नामांकन की जो है 15% तक बढ़ा दी। तो बात तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है, लेकिन समझना भी क्वेश्चन जरूरी है, और क्वेश्चन समझ से ही आप जो है इसकी वास्तविकता को समझ सकेंगे। तो देखा जाए तो 11वीं योजना में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा को नामांकन को 2011-2012 तक 15% की गई थी, और 12वीं योजना के अंतर्गत 21% तक बढ़ाने का जो है प्रयास किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2011 से 12 में जो है 18 से 23 वर्ष की आयु के जो है वर्ग के बच्चे थे, उनमें जो है 15% शिक्षा को बढ़ाने की योजना रखी गई थी 2011 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 21% तक कर दी गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के प्रावधान को जो है लागू की गई थी। तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि इस पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने सरकार के भीतर विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन का प्रस्ताव रखा। उस पुस्तक का क्या नाम है? क्वेश्चन समझ में आया? कि देखिए, एक पुस्तक है जिसमें विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बीच शक्ति का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था। उस पुस्तक का आपको नाम बताना है कि वो पुस्तक कौन थी जिसमें जो है इन शक्तियों को विभाजन करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। द क्वेश्चन है, इन द बुक Montesquieu is a purpose or division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary. Identify the book. You know that. The identify the book. Question is very interesting. But you know that is the most important fact here. In the trustees administrations related to the constitutional system, a government with the separation of power and preservations of legislatives and civil liberties and the end of slavery mean here। इस ग्रंथ में मोंटेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण, वैधता और नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के गुलामी के अंत के साथ सरकार के संवैधानिक प्रणाली का वकालत भी की। देखा जाए तो वो किताब का नाम जो था कानूनों का आत्मा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, कानून का आत्मा, जिसमें विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कॉलम ए और बी में सही विकल्प का जो है आपको चुनना है कि सही विकल्प क्या है, कौन सा कॉलम जो है सही विकल्पित है। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए कह रहा है प्रचंड बेरोजगारी, कॉलम बी में इसका अंतर्गत बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्या प्रचंड बेरोजगारी सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है? क्या ये कॉलम सही है? दूसरा है बी अधिशेष श्रम। अधिशेष श्रम का जो है बताया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। क्या ऐसा सही है? सी कह रहा है कि बाजार गतिविधियाँ, बाजार गतिविधियों में क्या गैर लाभकारी बात है? या डी सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की गई है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है। क्वेश्चन को यहाँ समझना ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई रिपीट इन इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए
A declining unemployment reasons here found in the industry area. Option B, surplus labor has a move to be a primary sector. Option C, market activity are non-profitable. And option D, Sarv Shiksha Abhiyan, the individualization of secondary education. You know that question is very interesting. But first of all, one fact is most important. Sarv Shiksha Abhiyan is the SSA is the world's most successful school program in India. It was launched to be achieve the goal of universalization of element of education in the country. It is a focus on the compulsory education to the children in the age of group 14 ईयर। इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि भारत सरकार ने जो है सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। सर्व शिक्षा अभियान भारत में दुनिया का सबसे सफल स्कूल कार्यक्रम है। इस देश में जो है आरंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। अब वर्ष 2014 की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पर केंद्रित किया गया था। यानी भारत में जो है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है। अच्छी बात है, कहते हैं बच्चों को 14 वर्ष तक जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा भी ऐसी हो जो उनको समझदार बना दे। क्योंकि कहते हैं एक व्यक्ति से देश नहीं चलता है। जब तक हमारा भारत में हर एक बच्चा समझदार नहीं बनेगा, एक्टिव नहीं बनेगा, तब तक देश को जो है कोई भी बहुत ही आसानी से जो है बरगला सकता है। कहते हैं अंग्रेज़ों के समय जब भारत में वो अंग्रेज़ आए तो उसमें शिक्षा का स्तर कम था, लेकिन जब शिक्षा का स्तर लोगों में बढ़ा तब वो अंग्रेज़ों की जो है बातों को समझ सके। आज भी वही सिस्टम है। अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा तो ये जो राजनीतिक में इतनी उथल पुथल होती रहती है, आए दिन जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो क्या जनता ये बात समझती नहीं है कि ये सब ढोंग है, सब प्रपंड है, सिर्फ सीट पाने की एक लालसा है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ सकता कि अगर आप अच्छे कर रहे हो तो आपको डर काहे को है। कहते हैं जो अच्छा राजनीति कर रहा है, जो देश में भलाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डर किस बात का है। और जो फालतू के लोगों में उल्टे पुल्टे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो गलत है ना। कहते हैं हमारे देश में किसान आंदोलन एक आम सी बात बन गई है, लेकिन कोई ये बात नहीं समझता है कि इस आंदोलन से वो भी एग्ज़ाम के समय कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होगा। शायद ना तो ये मंत्री लोग नहीं समझ पा रहे हैं, न किसान लोग समझ पा रहे हैं कि हम इस आंदोलन को आगे भी तो रख सकते थे, या हम पहले ही दिसंबर में कर लेते। ज़रूरी है बच्चों के एग्ज़ाम के समय ऐसी हालात पैदा करना। तो हम क्या कहें, हमारे देश के ना कोई नेता सही है ना कोई लोग सही है। कहते हैं इसके कारण बहुत से बच्चों को जो है एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आ रही है। वो टेंशनों में भरे रहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग जाने तक भी नहीं देते। रोड जाम कर रखे हैं, ये जाम कर रखे हैं। अरे आप दिखाना क्या चाहते हो, किस बात को दिखाना चाहते हो। सरकार से लड़ना है लड़ो, लेकिन एक समय काल देखो ना कि जहाँ पर जो है हमारे बच्चे के भविष्य खतरे में ना पड़े। सरकार क्या करेगी, बच्चे पेपर नहीं देंगे तो रीजन ये बताया जाएगा कि भाई उनको किसान ने रोक दिया, जाने का रास्ता नहीं था, नहीं गया। या तो बच्चे का किस्मत खराब होगा, ज़िंदगी बर्बाद होगी, या सरकार बाद में क्या करेगा, अनपढ़ बच्चों को पास करके रख देगा। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, देश का हुआ। बात आपने सरकार की माननी है, ये रखना वही बात सब है, होना वही चीज़ है, लेकिन फिर भी ये दिखावा किस लिए। अरे भाई एग्ज़ाम हो जाने देते फिर कर लेते, या एग्ज़ाम से पहले कर लेते। भाई ये कहते हैं ना साल भर माता पिता जो होते हैं बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं, कहते हैं कि बच्चे मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन पैदा होती है, जब हड़तालें होती है, लोग रोड क्लोज करते हैं, लोग क्या कहूँ मैं तो खुद दुखी हो जाता हूँ ऐसे सिस्टम को देख के। अपने लोग तक को भी जाने नहीं देते उस रास्ते से, और जब जाने की कोशिश करो तो मारते हैं थप्पड़। ये कैसा सिस्टम है। कहते हैं आप लोग क्या करके दिखाना चाहते हो। अगर आपको क्रॉस करना है, रोड जाम करना है, तो जाकर उन मंत्रियों करो ना जिनसे आपको बात मनवानी है, उनकी रोक दो। आम बच्चों को जिन्होंने पेपर देने जाना है, जिनका भविष्य लटका हुआ है,
मझधार में जिन्होंने रात रात भर दिन दिन में पढ़ के अपनी जो है पेपर को क्रैक करने की सोची है, उनकी पेपर क्यों खराब करने में लगे हुए। तो देखा जाए दोस्तों, आज न तो शिक्षा का स्तर सही बन रहा है, न लोगों की समझ बन रही है सही, सिर्फ उनको अपना मकसद निकालना है। कहते हैं ऐसे आंदोलन में हमेशा जो है गलत लोग जो है फ़ायदा उठा के चले जाते हैं और रह जाता है सिर्फ उन माता पिता जिनके बच्चे इस आंदोलन में खो जाते हैं, उनमें सिर्फ आंसू भरा रह जाता है। वो पैसे लेके करेंगे भी क्या। कहते हैं अपनों को खो के पैसा महत्वपूर्ण नहीं बनता है, लेकिन इस आंदोलन से न जाने कितने बच्चों का भविष्य भी जो कहते हैं अंधकार की कोठरी में समा जाता है। लेकिन ना तो ये बात सरकार समझती है और ना आम लोग समझते हैं। तो यही बात यहाँ आता है कि सर्व शिक्षा अभियान आपका यहाँ आंसर सही जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता है। सरकार जो है 8वीं क्लास तक बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देने की प्रावधान करता है। सर्व शिक्षा अभियान यानी हर बच्चा जो है पढ़े और आगे बढ़े। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको जो है अभिकथन ए के कथन के कारण आर का कथन आता है और सही विकल्प आपको चिन्हित करना है। यानी यहाँ पर अभिकथन होगा और कारण आपको दी जाएगी, उसी के अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, उसके अंतर्गत करना है। यानी सॉल्यूशन के रीजनिंग की जो ये क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। तो अभी की एजुकेशन ये बताना चाहता है कि आपको हर चीज़ के लिए सक्षम करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए अभिकथन ये कहता है, यानी दावा ये है कि एक टूटी हुई श्रृंखला मुक्त होने के कार्य का प्रतीक है। देखिए एक टूटी हुई श्रृंखला जो है मुक्त होने का कार्य का प्रतीक है कि मुक्त हो गए आप कार्य से। टूटी हुई श्रृंखला का अर्थ ये होता है कि आप कार्य से मुक्त हो गए। और कारण क्या बताया जाता है कि दासों को बंधनों के लिए जंजीरों का उपयोग किया जाता था। देखिए दासों को बंधनों के लिए जंजीर का उपयोग किया जा रहा था, ये बात तो सत्य थी। अगर हम इसी को समझने की कोशिश करें तो देखिए इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके जो है वास्तविक अर्थ निकालना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन है असोसिएशंस अ ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग अ फ्री। यू नो दैट assertion here, a broken chain stand for the act of becoming a free, and the reasons here, a chain were used to be a felt slab। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। देखा जाए तो ऑप्शन ये कहता है कि दोनों ए और आर सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, बी कह रहा है दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए टूटी हुई श्रृंखला मुक्त होने के कार्य को प्रतीक है, यानी टूटी हुई श्रृंखला मुक्ति होने का एक प्रतीक है, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दासों के बंधनों के लिए जंजीर का उपयोग की जाती थी। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का उपयोग किया जाता था और दासों को जंजीर को तोड़ देने को मुक्ति कहते थे। तो इसका मतलब ये दोनों बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी इस दोनों ही सही जाएंगे, लेकिन ऑप्शन तो एक हमें सही चुनना है। लेकिन एक बात देखिए, क्या ये इसकी पुष्टि, ये जो है आर जो है ए की पुष्टिकरण कर रहा है, बेशक कर रहा है, क्योंकि दासों के बंधनों की जंजीरों का उपयोग की जाती थी। जब ये बंधन टूट जाती थी तो दास जो होते थे मुक्त हो जाते थे और मुक्ति जो जंजीर टूटने का प्रतीक था। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है आपका कि दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने की ज़रूरत है और चलिए आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है। क्वेश्चन है कि रूसी नेता की पहचान करें। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक रूसी नेता है, इनका पहचान करना है कि आखिर ये है कौन, इनकी क्या विशेषता थी। रूसी नेता है ये, आपको इसकी पहचान करना है। तो क्वेश्चन है यह, आइडेंटिफाई द रशियन लीडर। यू नो दैट ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ लीडर इज अ शो हियर, लीडर पिक्चर शो ऑन योर स्क्रीन। आइडेंटिफाई द रशियन लीडर, नेम द रशियन लीडर, हु इज दिस। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो क्या ए लेनिन है ये, या जोसेफ स्टालिन है, या सी जार निकोल्स तृतीय है, या अलेक्जेंडर एरिकेन्स्क है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा
टीचर निकोलस II was the last emperor of the Russian king of the Poland and Greenland of there is a Finland. He was abdicated to the 1917. दोस्तों इसका मतलब यही होता है, यही बनता है कि जो आपके स्क्रीन पे नेता दिख रहे हैं जार निकोलस द्वितीय हैं, जो रूस के अंतिम सम्राट थे और पोलैंड के राजा, और फिनलैंड में ग्रेस ड्यूक थे, और 1917 में उन्हें त्याग पत्र दे दिया था। 1917 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो ये जार निकोलस द्वितीय थे, तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी सही है, जार निकोलस द्वितीय हैं ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि सामाजिक बहिष्कार से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि सामाजिक बहिष्कार, देखिए सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, सामाजिक बहिष्कार का आखिर मतलब क्या होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बनती है कि व्हाट इज द मीन बाय द सोशल एक्सक्लेशन हियर, यू नो दैट व्हाट मीन बाय द सोशल एक्सक्लेशन। ऑप्शन देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकारों से बाहर रखा जाता है। क्या ये सामाजिक बहिष्कार होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार से बाहर रखा जाता है, या बी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, या सी वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों या समूहों को उन सुविधाओं और अवसरों से बाहर रखा जाता है जिनका आनंद आम लोग उठाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बहिष्कार का मतलब तो वह प्रक्रिया ही है जिसे विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बी डी में कोई नहीं तो होगा नहीं, वह पर जिसके द्वारा व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ये भी होगा नहीं। यहाँ पर द्वंद्व ए और सी में रह जाता है कि इसमें जो है बाहर रखा जाता है विशेष अधिकार से। तो इसके लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा जो ज़रूरी है, जो समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि आखिर social exclusion is mean to be a situation which individuals are unable to participate in the political, economics and social scenario and they do not enjoy any benefit is opportunity। तो यही बनता है कि सामाजिक बहिष्कार का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, उन्हें कोई लाभ या अवसर नहीं मिलता है, वो समाज से अलग हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत करते हैं तो समझ जो है समाज जो है उसको बहिष्कृत कर देते हैं, समाज से बाहर कर देते हैं। तो देखा जाए इसमें ये होता है कि वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों और समूहों को उन सुविधाओं और अवसरों से बाहर रखा जाता है जिनका आनंद आम लोग उठा रहे होते हैं, यानी आम लोग की तरह जिनकी उनकी रह नहीं जाती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जरूरी है, तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों कुछ विशेष अधिकारों से बाहर, विशेष अधिकार नहीं, वो सारी सुविधाएं जो आम लोग आनंद उठाते हैं उन सभी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, उसे हम सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल साफ और क्लियर है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, नो दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी मंत्री परिषद के द्वारा, या सी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या डी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है, और सबसे बड़ी बात समझ की ये है, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय देयर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यू नो दैट द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, मीन्स हियर द मीन इज क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। यानी देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों के
के अंतर्गत होती है, यानी ऑप्शन सी सही है। इसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड होता है, प्रधानमंत्री भी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जो है मुख्य न्यायाधीश ही अपॉइंटमेंट देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही जाएगा। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुलर झील जो है स्थित है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुलर झील स्थित है। देखिए किस राज्य में हो सकता है। तो क्वेश्चन है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। द क्वेश्चन इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट is a Muller Lake localite? You know that question in which of the following states is a Muller Lake localite? क्या ए राजस्थान में है, या बी उत्तर प्रदेश में है, या सी पंजाब में है, या डी जम्मू कश्मीर में है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला बात है। द मुलर लेक टू बी जम्मू कश्मीर इन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देखा जाए तो आंसर यहाँ पर डी बनेगा, जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है मुलर झील है। और देखा जाए तो ये जो है ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील है पूरे भारत में, ठीक है। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, पूरे भारत में सबसे जो है ताज़े पानी का झील जो है मुलर झील ही है, और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है कि अभिकथन ए के कथन के बाद कारण बी का कथन आता है, और सही विकल्प को आपको चिन्हित करना है यहाँ पर। और यह क्वेश्चन है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती है। चलिए ये बात तो सही है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। कारण ये कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न कुल उत्पादन घट जाती है। देखिए ये बात भी सही है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं, जो हम कृषि करते हैं, उन्हें कुल उत्पादन में घट जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, assertion is a drought to create a shortage of food in affected area. The drought create a shortage of food in the affected area. The reasons here, due to the natural climate is the total production of food gain as decrease. You know that question is very interesting. A solution is a drought create a shortage of food in the affected area, and reason here, due to the natural climate is total production of food grain decreasing. तो क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ है। ऑप्शन यही रहेगा कि दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। बी यही कहेगा कि दोनों ए और आर सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी है ये सच है, सत्य है, लेकिन आर गलत है। डी ये कहेगा कि ये गलत है और आर सत्य है। तो यहाँ पर अगर बातों को समझे और हम विचार करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखेगा कि ऑप्शन क्या सही है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी तो हो जाती है, तो बात सच्ची सही है। और प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन घट जाती है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर आ जाता है। लेकिन क्या आर जो है ए का स्पष्टीकरण कर पा रहा है? देखिए प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन घट जाती है, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि अगर ये घटेगी तो सूखे में प्रभावित, ऐसे भी आप एनालाइज कर सकती हो कि प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन घट जाती है, जिसके कारण सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। देखिए कर रहा है ना, पूरे सेंटेंस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है कि दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए का स्पष्टीकरण हो रहा है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि एक किसान ने विभिन्न वर्षों में गेहूं उगाया है। एक किसान ने विभिन्न वर्षों में गेहूं को उगाया है। प्रत्येक वर्ष किसान की खपत सामान्य रहती है।
खपत के बाद बचे हुए गेहूं का पूरा उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी से दुगनी हो जाती है। तो दी गई जानकारी के आधार पर तालिका को आपको पूरा करना है। तो यहाँ देखिए, वर्ष उत्पादन उपभोग अधिशेष इक्वल टू उत्पादन माइनस अगले वर्ष के लिए उपयोगी पूंजी। देखिए, वर्ष 1 कह रहा है 100, फिर 40, 60, 60। वर्ष 2 में हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ऊपर जो 100 था उसकी जगह नीचे क्या आएगा। दूसरा है 40, 80, 80। तीसरा कह रहा है 160, 120, 110, 120 और बी क्या आगे आएगा। तो यहाँ बात समझने वाली है, सोचने वाली है और दिमाग लगाने वाला है। देखिए, पहले की गणना यहाँ किया जाए तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको यहाँ विकल्प भी दिए गए हैं और सही विकल्प की जो है यहाँ पर आपको चुनाव करने हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, अ फार्मर हैज़ अ ग्रोथ ऑफ व्हीट ड्यूरिंग टू डिफरेंट ईयर, ईच ईयर consumption of the farmer remain the same. The wall of surplus what after consumption in use of capital for next year production. Each year to production is twice the capital used to the production, and complete the table on the basis of given information. Know that question is very interesting. Given here formula, year production consumption surplus is equal to प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर इस बात को अगर समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा समझ लगाओगे, तो क्वेश्चन जो है काफ़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 40, 60 और 60, यहाँ पर 40, 80, 80, यानी 80, 80 दो बात तो यहाँ सही है कि दो डिजिटल जो है सेम ही आएगा। ठीक है, दो डिजिटल जो है सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बात यहाँ आता है कि 100 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो 60 आता है। ठीक है, तो 80 हम किस में से माइनस करेंगे? ठीक है, हम 40 किस में से माइनस करेंगे? जो 80 आएगा। किस में से करेंगे? दिमाग लगाइए। ये बात ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करता है कि हम अगर 100 की हमें फार्मूला भी दे दिया हुआ है ना, हमें देखिए फार्मूला में उत्पादन कितना हुआ? 100 हुआ, और अगले वर्ष के लिए उपभोग पूंजी कितनी रह गई? 40। तो हम 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60, 60 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 80 किस बेस पे आएगा 40 माइनस करने पर? तो देखिए, अगर 120 लेते हैं, अगर 120 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो 80 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बात सही है ना? 120 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है अगर 120 में से 40 माइनस करिएगा तो 80 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ ए और बी सही जाएगा। लेकिन हमें चुनना तो एक को ही है ना, या तो ए या बी। लेकिन यहाँ पर देखिए, वर्ष 3 में जो है 160 से 140 और 120, तो अगला डिजिट क्या आएगा? जैसे आपने ऊपर देखा होगा वर्ष 1 और वर्ष 2 में कि लास्ट के 2 डिजिट जो है सेम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही बात बोला था। क्वेश्चन में भी यही बात बोला था कि प्रत्येक वर्ष किसान की खपत सामान्य रहती है। प्रत्येक वर्ष जो है खपत सामान्य रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर 60, 60 दो बार है, 80, 80 दो बार है, तो यहाँ पर 120, 120 दो बार होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का भी एनालाइज करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि भावर की चौड़ाई कितनी है? भावर नदी है और भावर की नदी की चौड़ाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। द नेम व्हाट इज द width of the भावर? You know that question is very interesting. What is the width of the भावर?
और इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये याद करके ही हम कर सकते हैं सोल्यूशन, क्योंकि ऐसे तुक्का लगाना सही नहीं होगा। और यहाँ ऑप्शन बताया गया है कि 8 से 19 किलोमीटर, बी कह रहा है 8 से 16 किलोमीटर, और सी कह रहा है 16 से 30 किलोमीटर, या डी 8 से 26 किलोमीटर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है कि भाबर की चौड़ाई कितनी हो सकती है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें, अ नैरो वेल्ट lying parallel to the Shivalik is known as a bhavar. The parallel to the Shivalik is known as a bhavar. The wealth of this wealth about 8 to 16 किलोमीटर। इसका मतलब देखा जाए तो यही कहता है कि अगर हम पैरल चले तो शिवालिक को ही भावर के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8 से 16 किलोमीटर होगी। 8 से 16 किलोमीटर, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ सही है, 8 से 16 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के नाम बताना है। देखिए ये नाम अगर आपको पता होगा तो फटाक से बता दीजिएगा कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। नेम द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेम द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। देखा जाए तो ऑप्शन कह रहा है पहला मंजूली द्वीप, बी कह रहा है बैरन द्वीप, सी कह रहा है बेनाडू द्वीप, या डी कच्छ द्वीप। ये सारे ज्वालामुखी है, लेकिन आपको इसमें से जो है सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो के नाम बताना है कि कौन इसमें जो सक्रिय, जो विस्फोट हो सकता है, सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट होती ही रहती है, कौन सी है। बात यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। द बैरिन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन द अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो देखा जाए तो यहाँ आंसर जो है बी पर इशारा कर रहा है। बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में पाई जाती है, और ये भारत के किस क्षेत्र में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये काफ़ी खतरनाक है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ये हमेशा सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए नर्मदा नदी का जो है वो कहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन साफ है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वेश्चन है हु लीड टू द रिवर ऑफ नर्मदा हैज़ द सोर्स एट। द रिवर नर्मदा हैज़ इट इज द सोर्स एट। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द रिवर नर्मदा हैज़ द सोर्सेज एट हियर। ऑप्शन ए कह रहा है सतपुरा, बी कह रहा है ब्रह्मगिरी, सी कह रहा है अमरकंटक, डी कह रहा है पश्चिमी चटल्स की ढलाने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। द सोर्स ऑफ नर्मदा इज द स्मॉलेस्ट रिजर्वायर नोन एज द नर्मदा कुंड। देयर इज स्मॉलेस्ट reservoir known as the Narmada Kund. It is located in the Amarkantak. On the Amarkantak is a plateau in the Anupura district of Sahdol zone of the eastern Madhya Pradesh. The mean here देखा जाए तो इसका अर्थ यही निकलता है कि नर्मदा नदी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, और नर्मदी का स्रोत का एक छोटा सा जलाशय है जिसे नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है, और यह पूर्वी मध्य प्रदेश के शहडोल क्षेत्र में जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार के अमरकंटक में स्थित है। तो इसका मतलब जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक हुआ, यानी सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। आप सोचिएगा कि नया युद्ध क्या है, नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया। तो क्वेश्चन तो हमारा साफ यहाँ पर यही है कि जो नया युद्ध था जिसको नाम नया युद्ध दिया गया उसका जो है नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ घुमा फिरा के कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, क्लियर। हु लीड टू बी नया युद्ध, हु लीड टू अ नया युद्ध। क्या ए भीमराव अंबेडकर थे इसके नायक, या बी चौधरी DVI लाई थे,
या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डी मोतीलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है कि आखिर नया युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो वन फैक्ट है इम्पोर्टेंट, चौधरी देवीलाल देन ऑपोजिशन लीडर टू लीड टू द मोमेंट इज कॉल्ड नया युद्ध एंड द फॉर्मेट न्यू पार्टी ऑफ लोकदल। तो देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि यहाँ आंसर है बी चौधरी देवीलाई जो थे नया युद्ध के नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर जो DCVI दिया हुआ है गलत यहाँ पर बन गया है, ये देवी है, यानी चौधरी देवीलाई जो है इन्होंने जो है नया युद्ध का नेतृत्व किया था, और ये जो थे नए पार्टी लोक दल के सदस्य थी, और इन्होंने नया युद्ध का जो है पूरा नेतृत्व अपने कंधों पे लिया था। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक लोकतंत्र सरकार में निर्णय लेने की शक्ति विभाजित होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि एक लोकतंत्र सरकार में निर्णय लेने की शक्ति जो है अलग अलग दलों में विभाजित होती है, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होती है। तो देखा जाए तो वो किस क्षेत्र में विभाजित होती है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द डिसीजन मेकिंग पावर इज डिवाइडेड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द डिसीजन मेकिंग पावर इज डिवाइडेड इन द। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या ए विधायक को मिलता है, या बी कार्यकारी को मिलता है, या सी न्यायपालिका को मिलता है, या डी सभी को मिलता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि भारत में लोकतंत्र होने के नाते शक्तियों का विभाजन किस प्रकार की जाती है। देखा जाए तो भारत एक लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र सरकार में निर्णय लेने की शक्ति 3 अलग अलग अंगों कहते हैं, जिसे 3 टायर कहते हैं। और 3 टायर्स में विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित होती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन A, B, C सभी सही हैं। विधायक, कार्यकाली, न्यायपालिका सभी को जो है शक्ति के विभाजन की जाती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका सही है, और आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। देखा जाए दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने किया है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है, और ये एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो इसको अच्छे से कीजिए, समझिए, विचार कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक दूसरे बच्चों तक पहुँचेगा नहीं, और नहीं पहुँचेगा तो ना तो हमारा भारत देश जो है आगे बढ़ पाएगा, ना हमें सच्चाई से हमें दीदार हो पाएगा। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, और सच्चा ज्ञान ही उसको वास्तविकता से जो है अवगत करा पाएगा। और इसमें और देश के भविष्य में जो है अच्छे लाने के लिए आप एक कदम उठा सकती हो, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे ही कल के भविष्य हैं, और भविष्य अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, सही ज्ञान प्राप्त करेगा तो ज़रूर हमारा जो है देश की तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं मैंने जितने भी किताब पढ़े हैं, जितने भी देखे हैं, सब में शिक्षा को ही महत्वता दी गई है, लेकिन भारत सरकार शिक्षा को महत्वता दे के नहीं दे के जो है गलत चीज़ों का अनुसरण कर रही है, जो गलत है। और इसमें आप शेयर करके ही इन सभी बातों का जो है अनुसरण कर सकते हो। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, और सारे वीडियो जो बहुत ही आसानी से यहाँ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 6 से MA तक कोई आम बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।